ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 3 दिवसीय 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीयों की अलग अलग क्षेत्रों में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की सफलता की कहानियां न सिर्फ भारत के लिए गौरव की बात है, बल्कि यह दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा भी प्रदान करती है। The Indian diaspora represents the best of our country. You, the sons and daughters of Bharat, have carried with you not just the knowledge and skills acquired in this sacred land, but also the values and ethos that have been the foundation of our civilization for millennia. Whether in the fields of technology, medicine, arts, or entrepreneurship, the Indian diaspora has made a mark that the world acknowledges and respects. Today, we honor those amongst you who have distinguished themselves through exemplary achievements. It is my privilege to confer on them the Pravasi Bharatiya Samman as India's token of recognition of their extraordinary contributions. My heartfelt congratulations to all the awardees. राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि प्रवासी भारतीय दिवस अब सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां विचारों का संगम होता है। The Pravasi Bharatiya Divas has over the years become more than just an event. It is a platform where ideas converge, collaborations are forged, and the bonds between India and its diaspora are strengthened. I am sure that over the last 3 days, you have used this occasion to engage in meaningful dialogue and share your experiences. This event underscores the fact that while you may be physically distant from your homeland, your connections with Bharat remain as strong as ever. Ladies and gentlemen, our nation today is marching towards Viksit Bharat, a developed India by the year 2047, when we will celebrate 100 years of our independence. This vision is not just a government initiative, it is a national mission that requires proactive and enthusiastic participation of every Indian, including those living abroad. राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों के योगदान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। Recognize the crucial role of the diaspora in nation building. Government of India has taken several initiatives to support you. Consular services for non-resident Indians have been simplified. For overseas citizens of India, processes have been digitized and streamlined. Initiatives like Know India program provide avenues for the younger members of our diaspora to rediscover their Indian roots. I am happy to know that Odisha government is appointing a nodal minister for engaging with Pravasi Bharatiya for project investment, etc. I appreciate the step taken by the Odisha government. We have also been proactive in safeguarding interests of Indians living abroad. In recent years, we have launched several missions, including Operation Kaveri, Operation Ganga, and Operation Vande Bharat, to assist distressed Indians. Today, Indians around the world can count on their homeland for support and protection in times of need. राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय, खासकर महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में वैश्विक मंच पर उच्च मानक स्थापित किए हैं। The achievements of Indian women globally are a matter of immense pride for us as they break barriers and scale new heights in various fields. Our students and youth, with their dynamism and creativity, are the torchbearers of our future. They are the ones who will carry forward the legacy of a vibrant and progressive India. वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव पर राष्ट्रपति ने कहा
कि देश आज ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। Our vision for Viksit Bharat aligns with our growing stature on the world stage, particularly as a leading voice of the global south. It is guided by our timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This vision is about creating an ecosystem that not only meets our needs but also contributes to global well-being. We seek to be a nation that balances economic progress with social justice and environmental stewardship, ensuring a bright future for generations to come. Each one of you, whether through entrepreneurship, philanthropy, or knowledge sharing, will play an essential role in achieving this vision. राष्ट्रपति ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रवासी भारतीयों से सहयोग की भी अपील की। The connection between the Indian diaspora and motherland is eternal. No matter where you are in the world, Bharat is and will always be your home. This bond is rooted in the shared heritage, culture and values. It is this connection that we celebrate today, and it is this connection that will continue to inspire us as we move forward together. As we celebrate the achievements of our Pravasi Bharatiya family, let us also look forward to the future with hope and determination. Together we can build a Viksit Bharat, a nation that stands tall on the global stage and continues to be a beacon of light for the world. इस मौके पर राष्ट्रपति ने 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया। पुरस्कार पाने वालों में त्रिनिडाद टोबैगो की राष्ट्रपति, ब्रिटेन से बी उषा कुमारी पराशर और अमेरिका से डॉक्टर शर्मिला फोर्ड शामिल हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। योर सेफ्टी एंड वेलफेयर आर अ टॉप प्रायोरिटी। हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। भारत आने के लिए, भारत को देखने के लिए इंस्पायर करें। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। वैश्विक विकास और भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। उन्होंने फिर दोहराया कि भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था।
हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है, बल्कि लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में समाहित है। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी जीवन पद्धति है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं, वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं, वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश की आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सिर्फ 10 सालों में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। भारत की सफलता आज दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या तकनीक का, भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। आज जब भारत का चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचता है, तो हम सबको गर्व होता है। आज जब दुनिया डिजिटल इंडिया की ताकत देखकर हैरान होती है, तो हम सबको गर्व होता है। आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपलब्धियों और संभावनाओं के कारण भारत की वैश्विक भूमिका में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत
अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा, तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत अपने ग्लोबल रोल का विस्तार कर रहा है। साथियों, भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रवासियों की सुविधा और आराम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। We give great importance to your convenience and comfort. Your safety and welfare are a top priority. We consider it our responsibility to help our diaspora during crisis situations, no matter where they are. This is one of the guiding principles of India's foreign policy today. Over the last decade, our embassies and offices worldwide have been sensitive and proactive. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक खुशहाली को दर्शाते हैं। आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। G20 के दौरान हमने देश के कोने कोने में इसलिए मीटिंग रखी ताकि दुनिया भारत की डायवर्सिटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाए। हम बड़े गर्व से यहां काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजन करते हैं। अभी कुछ दिन बाद ही संत थिरुवल्लुवर दिवस है। हमारी सरकार ने संत थिरुवल्लुवर के विचारों के प्रसार के लिए थिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर्स की स्थापना का निर्णय लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। भारत में हेरिटेज से जुड़े अपने स्थानों को कनेक्ट करने के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। जैसे भगवान राम और सीता माता से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए स्पेशल रामायण एक्सप्रेस ट्रेन है। भारत गौरव ट्रेनें भी देश के इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेसेस को जोड़ती है। अपनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन से भी हमने देश के बड़े हेरिटेज सेंटर्स को जोड़ा है। थोड़ी देर पहले एक विशेष प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का अवसर मुझे मिला। इसमें करीब 150 लोग टूरिज्म और आस्था से जुड़े 17 डेस्टिनेशन का टूर करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता। वहां भी आप जरूर होकर आए।
प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने के लिए प्रवासी भारतीयों से योगदान की अपील की। साथियों, साल 1947 में भारत को आजादी मिली और उसमें एक बड़ा रोल हमारे डायस्पोरा का भी रहा है। उन्होंने विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए कंट्रीब्यूट किया। अब हमारे सामने 2047 का टारगेट है। हमें भारत को विकसित देश, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। आप आज भी भारत की ग्रोथ में शानदार कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपके हार्डवर्क के चलते ही आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। अब हमें इससे भी आगे सोचना है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का भी आह्वान किया। मेरी एक और अपील मदर और मदर अर्थ से जुड़ी है। अभी कुछ दिन पहले मैं गयाना गया था। वहां के प्रेसिडेंट के साथ मैंने एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव में हिस्सा लिया। भारत में करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। आप भी जिस देश में हैं वहां अपनी मां के नाम एक ट्री, एक सैपलिंग जरूर प्लांट करें। मुझे विश्वास है कि आप जब भारत से लौट कर जाएंगे तो विकसित भारत का रिजोल्यूशन, ये संकल्प भी आपके साथ जाएगा। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो प्रवासी भारतीयों से जुड़ने और उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।